So this time we are going to go for our next class, and that will be how to refine an image and how to clean up the face blemishes, and how do you clean all of these things. So first of all, I'm gonna go and select in the Google. Let's select an image, and right, raw face image लेंगे, right, and we're gonna see that how do you convert these images into a clean up version, and how do you enhance them. So we're gonna go over here, we're gonna go to our reference gallery, go to portrait, and I'm saving that one. So I'll just give it face blemish, and because it's a JFF IFF format, that's why it won't be open in Photoshop without uh, losing, because it's a different format Photoshop doesn't support. So what we are going to do, we are gonna select this portrait. If it is there, then just right click over it, go to open with, go to paint, right, go to file, save it as PNG. पेंट में से सेव कर देंगे तो वो फाइल फॉर्मेट ठीक हो जाता है. तो गो टू PNG and save it again from that portrait wherever you want to put it. So I'll just put it on portrait and portrait, right, and we'll just go to, now I'm gonna bring that image over here. So file, open, and let's just go to portrait, and here you will see girl portrait image. Open that up, it will open. Now as you can see that this image is quite small. We do not need this one. So what we will do, we'll have to click over here, because without opening this much of a big image you cannot able to work. So go to save image. Now it's in JPEG form. ये वाला जो फॉर्मेट, वो वाला फॉर्मेट अलग था. सो आई जस्ट गिव इट अ गर्ल अंडरस्कोर एनी नेम. सो अगर कोई फॉर्मेट ओपन ना हो फोटोशॉप में, तो आप उसको पेंट में ओपन करके सेव कर लीजिए दूसरे फॉर्मेट में, तब वो फोटोशॉप में वर्क करेगा. सो नाउ लेट्स जस्ट ओपन दैट वन, girl pp, and it's open. Let's bring it over here in our canvas so that we can work on it. So it would be somewhat like this. Now you can see that the face of the girl has a lot of issues, right? There are a lot of blemishes are there, and you wanted to remove all that. So what you can do, there is a whole bunch of galleries in Photoshop where you can remove these. So the first one is your healing brushes. That is what you use basically in order to remove all those stuffs. So how to remove them? You can directly take these brushes and click and drag over the image, and it will remove that, right? But that will affect your image, right? So you won't do that. Don't ever, whenever you are working on these photo compositions, don't ever use base as a source image. देखो आप जहाँ सेव किए थे, आउटपुट फोल्डर क्या था? फिर से एक्सपोर्ट में जाओ तो आउटपुट फोल्डर मिल जाएगा, right? So you can see that it was being removed, but you will not use this image or the source image as a base always, because you can't change this one. So what you will need to do, first make a copy of it, Control J is to copy, and इसको off कर देंगे यहाँ से. This will be the visibility sign. Turn it off, and then you can work over this one. And then we are also not going to
affect this one. We are gonna create another layer above it, which is an empty layer. In here we are actually going to apply that. So if I click on blemish and it will remove, it will actually being saved over here as an image. So if I remove this one, you can see that the blend is here. Now one more thing you need to understand, that sometimes it won't work, right? You are going to click and drag and it won't remove. Why? Because this particular sample or layers is turned off. If you turn it off, then whatever you do, it won't remove it. Why? Because we had selected the separate layer. Okay, so it only works on the sample layers. But if you don't want to affect your source layer and you just wanted to work on a different separate layer, just click on this and sample all layers. Now you can, when you apply that, it will take off all that design. Okay, so ये जो टूल है स्पॉट हीलिंग ब्रश, जो सबसे पहला हीलिंग ब्रश की कैटेगरी में सबसे पहला ब्रश है, विच इज़ कॉल्ड स्पॉट हीलिंग ब्रश. स्पॉट हीलिंग ब्रश का जो शॉर्टकट है जे है, सारों का जे ही शॉर्टकट है, बट इसका जो यूज़ है ये एक्चुअली में प्रोसीजरल ब्रश है, यानी कि सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से मैनेज करता है. इसमें आप क्लिक और ड्रैग करिए और अपने हिसाब से आप उन सिचुएशंस को रिमूव कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांटेड टू, वो देखो ब्लू कलर का जो लिंक है ना, क्लिक, हाँ क्लिक करो इस पर, या दिखाया. फाइल का वो देख लो, पाथ कहाँ पे सेव है. पहले कॉन्सेप्ट तैयार करो. कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट में बनाना है तुमको, खुद को क्या बनाना है. हाँ, नो इश्यूज. Okay, so when we turned this on and off, you can see that we had actually removed a lot of blemishes, right? Now this spot healing brush comes up with three modes, three different modes. One is by default content aware is selected. Okay, content aware is selected, where you can directly click and it will actually read that whole image and try to blend it. Along with that, when there you go to proximity match, when you click over it, what it does, it actually calculates the diameter of the brush and जो best pixel होगा वो वहाँ put कर देगा, right? Just to remove that. Now there is a texture mode. In this, it will actually replaces and put a separate textures over it, right? कुछ grains उसके अंदर डाल देता है वो. If I zoom in, you can see then that it looks like small grains, right? So ये तब के लिए जब skin जो है बहुत ज़्यादा plastic नज़र आ रही है, then you can add that. So that will be optional, that will be on some cases, but that will work on every case, right? सारा कुछ, so you can work on it. Now कुछ sections हैं जो नहीं होते remove, right? इसको use करने का तरीका simply है कि आप इसको बस drag करके paint कर दीजिए and it will try to remove all that. So let's just say कुछ areas remove नहीं किया, तो then उसको फिर से आपको click and drag करना होगा. Now let's just say if I wanted to remove these lines,
राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और फिर ज़्यादा एरिया वो सेलेक्ट करूँगा जो जिसके पिक्सल्स मैं यहाँ डालना चाहता हूँ। सो आई जस्ट सेलेक्ट दैट एंड क्लिक ओवर हियर एंड सी। सो ये क्या करता है, जिस लाइंस को मुझे रिमूव करना है तो मुझे उनको रिप्लेस करने के लिए ज़्यादा वो कलर सेलेक्ट करना होगा जिस कलर से मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, राइट। तो वो यहाँ से उठा के वहाँ लगा देगा। जैसे यहाँ मुझे रिमूव करना है, सो आई जस्ट टेक अ पिंकिश वन ज़्यादा, तो वो वहाँ आ जाएगा, ठीक। नाउ द सेकेंड वन विल बी योर हीलिंग ब्रशेस। स्पॉट हीलिंग जो है वो अपग्रेडेड वर्जन है हीलिंग ब्रशेस का। हीलिंग ब्रशेस में आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, right? What it gives you an option that you need to provide a target source, यानी कि let's just say this is a very pale skin, so just click over here, then press alt and click। तो alt करेंगे तो ये टारगेट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको क्लिक करना होगा और उसी जगह से वो उठा लेगा। लेट मी शो यू, सी माई ब्रश। और अगर मैं इसको when I click over here, there is a small plus sign is there, तो वो वहाँ से टारगेट यहाँ फिक्स कर रहा है। That's how it works. So generally let's just say if I wanted to remove these ones और यहाँ पे थोड़ा सा हेयर्स मुझे रिमूव करने हैं स्किन्स के, तो मैं यहाँ पे स्किन लगाऊंगा और पेंट करते जाऊंगा। हाँ, ऑल्ट दबाने से क्लिप मास्क नहीं लगता। ऑल्ट दबा के आपको कर्सर के दोनों लेयर के बीच में कर्सर रखना होगा, दोनों लेयर के। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद फिर उसमें क्लिक करना होगा। तो पहले हाँ ऑल्ट दबा के ये क्लिप होता है। So now let's just say if we wanted to remove this one, skin ली हमने and then we can paint it। let's just say अगर ears के ये earrings remove करने हैं, तो you will just select this portion of ear, start removing it। you just have to zoom in, ब्रश छोटा कर लेंगे and we'll just remove that। यहाँ से इमेज से हम ईयर्स क्रिएट भी कर सकते हैं ना, बट बिफोर दैट यू नीड टू सी कि ऑल सैम्पल्स ऑन हैं और ब्रश जो है वो कितनी वैल्यूज उठा रहा है। सो सी is completely removed। जो बचा कुचा एरियाज है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड विल वहाँ का एयर जो है वो इधर रेप्लिका कर देंगे। सो लेट्स जस्ट पुट राइट ओवर हियर और इसको right, so remove all that। click on brushes and see whether your brushes are hard or not। तो hard करेंगे so you will get see कितना hard ब्रश रहेगा और उसकी सॉफ्टनेस जो है वो डिसाइड करेगा कि हमको कितना
सॉफ्ट वहाँ पे पेंट करना है. Now it is blending quite a different with these in comparison to spot healing, क्योंकि ये जो है ये ब्लेंड करने के लिए ज़्यादा जाना जाता है इमेजेस को, तो इसके कारण से कई बार कुछ सेक्शंस जो हैं वो नज़र आते हैं. सो अगर हम इसको 100% में देखें तो 100% कुछ ऐसा रहेगा. We can fix that one also. So for now let's just say if I want to remove नेट नहीं चला सकते ना. आप नेट नहीं चला सकते अलॉन्ग विद द मैक नॉर्म्स. अगर आपको लग रहा है कि चला सकना है तो परमिशन सर से लेनी पड़ेगी. सर से परमिशन ले लो कि सर मैं चला सकता हूँ क्या. अप टू यू, परमिशन ले लो भाई. नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मैं बता दिया कि अलाउ नहीं होता है, लेकिन अगर आप चाहते हो वहाँ अपलोड करना तो आप सर से पूछ लो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर से पूछ लो. सो ब्लेमिशेस को हम रिमूव कर रहे हैं. नाउ डोंट वरी अबाउट दैट ग्रेन्स कि स्किन में अभी भी वो मेकअप सॉर्ट ऑफ चीज़ें नहीं क्रिएट हुई, बिकॉज दैट इज़ नॉट my point right now to do. I was just currently just cleaning up everything. Okay, after that we are going to do and change all that. So as you can see कई बार क्या होता है कि कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा मोटा होता है ना, तो शेड्स बनने लगते हैं, रिंकल शेड्स बनने लगते हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए राइट, जैसे नेक को ज़्यादा वो नहीं दिखाना है. तो नेक का जो होल टुगेदर शेड्स थी वो बदल जाएगी. नाउ क्लीन अप जो है ठीक है, शेड्स हमने अपने हिसाब से क्रिएट कर दिया. जस्ट टू क्लीन दैट पॉइंट अप, राइट. अब जब ये पूरा क्लीन कर लिया, अब क्या होता है कि हमको अब इसमें स्किन को स्मूथ दिखाना है. तो स्मूथ दिखाने के लिए हम सबसे पहले तो वी गोइंग टू मर्ज दिस वन. ठीक है, कंट्रोल ई शॉर्टकट होता है दोनों लेयर्स को मर्ज करने का. ओके, सो कंट्रोल ई करेंगे.
ठीक है, तो आई सी यू, अभी नहीं आ पाते तो कोई बात नहीं, आई मेक इट अप टू यू, ओके, ऑलराइट, ओके, वेलकम वेलकम, बाय बाय, वेलकम, या, थैंक यू। हमारे पास इनका वो कैसे, इनका तो इवनिंग में शुरू होगा, लेट्स सी। ओके, सो अब क्या है हमारे पास जो क्या बोलते हैं लेयर आ गई है, अब हमें इसको स्मूथ करना है, ठीक है। फॉरगेट अबाउट दोज मेकअप टोन्स, वो सब चीज़ें अभी नहीं डालेंगे, थोड़ी देर से। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ दिस ऑन टॉप ऑफ आवर लेयर, एक कॉपी करेंगे और इसको क्या करेंगे, ब्लर, टू मेक इट लुक लाइक अ पेस्टल। सो विल गो टू फिल्टर, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर, ठीक है। इसको स्मूथ करेंगे जितना हो सके, बट इसको थोड़ा सा इतना स्मूथ रखना है कि हमें टेक्सचर डिटेल्स नहीं दिखनी चाहिए, वो धब्बे, वो स्किन पोर्स वो नहीं दिखें। सो व्हाट वी विल डू, विल गो फॉर अ हल्का गॉसियन ब्लर, हल्का देंगे, और आई एम ऑल्सो गोना क्रिएट ब्लर आ मोशन ब्लर, ठीक है। गॉसियन ब्लर और मोशन ब्लर, मोशन ब्लर से क्या होगा, जो ग्रेन्स हैं वो हल्के हल्के खिंच जाएंगे, राइट। अभी वो अपनी ही जगह पे ब्लर थे, सॉफ्टन थे, अब वो ना एक साइज पे, एक एंगल पे खिंच जाएंगे, तो आप उसको डिस्टेंस पे खींच देंगे, ओके। नाउ यू विल सी दैट द फेस हैज समथिंग स्मूथ, बट वो ब्लर हो गया है पूरा, राइट, एंड यू वांटेड टू क्लियर दैट आउट। सो व्हाट यू विल डू, you will select the particular layer, इसको आप इरेजर से इसके आईज वगैरह सेक्शन पे, जो सेक्शन किसी फेस को क्लियर दिखाते हैं उनको आप रिमूव करेंगे। सो यू विल टेक अ इरेजर, सॉफ्ट कर दीजिए ब्रश को, ठीक है, और इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा आप 60 कर दीजिए, ठीक है, 60% ओपेसिटी, एंड देन क्लिक एंड ड्रैग। So you can see this eye is clear, right? Go over here, paint, paint, paint on hairs, because hairs तो clear नजर आएंगे। Rest of the thing will be same. See, that will be, and this will be your smoothen up. जहाँ पे आपको लगे बाल वगैरह जो ग्रेन्स कर रहे हैं, उतना एरिया इरेज कर दीजिए। अब ये कैमरा फोकस ही है वैसा, तो वो हमको नहीं नज़र आए, वो हमको ब्लर ही नज़र आएगा, दैट इज़ अ कैमरा फोकस। नाउ यू कैन सी कि नाउ फेस इज क्लीनड अप along with some smooth textures. Now अब क्या होगा कि क्योंकि स्मूथ है, इसने अपनी लाइट्स की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी खो दी है, इसमें डेप्थ नहीं है। डेप्थ देने के लिए हमको यहाँ पे डॉज टूल मिलते हैं, ये 3 टूल्स हैं, हाईलाइट्स, शेडोज एंड मिड टोन्स, ठीक है। तो हाईलाइट्स के लिए डॉज टूल, जो कि वाइट एरियाज को और वाइट कर देगा, और बर्न टूल ब्लैक एरियाज को और
ब्लैक कर देगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना यूज अ डॉज टूल to create some more lights. So we're gonna go over here, click and drag. First you need to have a soft round brush, ठीक है, ताकि वो एक्चुअली फिक्स रहे. ये क्या करेगा, ये लाइट्स क्रिएट करेगा. एक्सपोजर बढ़ाइए, गो टू, यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन होंगे, मिड टोन्स, हाईलाइट्स एंड शेडोज. क्योंकि ये वाइट को और वाइट करता है या और ब्राइट करता है, तो आप केवल हाईलाइट्स में करेंगे तो इस इमेज में जहाँ जहाँ हाईलाइट है वही ब्राइट होंगे. अगर आप मिड टोन करेंगे तो जहाँ जहाँ मिड टोन्स हैं बस वही ब्राइट्स होंगे. ओके. एंड सिमिलरली इफ़ यू गो फॉर अ शेडो, तो जहाँ जहाँ डार्कर टोन्स हैं वहाँ ब्राइट होगा. जैसे ईयर्स, राइट, नोज़ के ये जो साइड के सेक्शंस हैं वो चीज़, राइट. एंड लिप्स पे अगर शाइन्स देनी है, हमको शाइन क्रिएट करनी है, ग्लॉसीनेस क्रिएट करना है, you can go with that one. Now as you can see I have created sufficient glossiness over here. Now I'm gonna go to highlight, और highlight में जहाँ जहाँ highlights हैं on the nose portion, वहाँ मैं बाउंस क्रिएट कर रहा हूँ. वैल्यू फुल कर दूंगा मैं, तो इट विल वर्क समथिंग लाइक दैट. तो उधर तो ज़्यादा नहीं. ओ शॉर्टकट है, अगर आपको उसको सेलेक्ट करना है तो गो टू ओ एंड एक्सपोजर लेवल थोड़ा सा कम कर देंगे. नाउ आई वांटेड टू गो फॉर आईज के जो सेक्शंस हैं, इसको हम इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे, जो हमारी नीचे वाली लेयर है उसको सेलेक्ट करेंगे एंड विल गिव सम गुड और ग्लो टू द आईज. देखिए पुराना जो है वो कुछ इस तरीके का था. देन वी हैड चेंज ऑल द ब्लेमिशेस एंड देन वी हैड एडेड आईज एंड शेडोज. You can draw your reflections and bounds directly and made them real clear. ठीक है, तो जितना हो सके उतना क्लियर आप बना सकते हो. ठीक है. देन let's just say if we wanted to add the shadows, so go to burn, and burn में फिर से हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे, सॉफ्ट राउंड ब्रश, और इसको मिड टोन्स को बढ़ा देंगे. एंड देन विल डू व्हाट, you can see that I could actually dark all that area, right, to create the sketchy edgy look. हेयर्स को हमेशा इरेजर, क्योंकि हेयर्स को हम नहीं ब्लर कर सकते, तो हमको हेयर्स को दिखाना होगा. विल नीड टू सेलेक्ट द सॉफ्ट राउंड ब्रश और हेयर्स को हमको शो कराना होगा. See the original image but the added one. Now
Let's just select this. Where was our dodge tool? O is the shortcut, so it will go over here and shades, chin shades. Okay. Now there's a lot more thing we can do in here, but I would say कि let's not add that much of it right now because we need to grasp this one first. ओके सो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे हीलिंग ब्रशेस लिए, स्पॉट हीलिंग ब्रश, ठीक है। पैच टूल जो है वो बहुत ही सिंपल टूल है, इट जस्ट एक्चुअली रिप्लेसेस द एरिया। लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड टू रिप्लेस द लिप एरिया, okay, and you wanted to replace it with some skin area, so you can just click over here. I'll just show you it over here. Click, and then when I'll do, so it will actually remove that one, it replaces. So generally if you wanted to, you know, sometime people actually create some sort of metallic art या जो बोलते हैं थोड़ा सा ग्रूसम आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं, तो उस जगह के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसको। वहीं अगर हम विल गो टू कंटेंट अवेयर मूव टूल, ये उल्टा करता है, ये आपको सिंपली एक जगह उठा के वहाँ पुट करनी होगी, देन प्रेस एंटर। लेट्स जस्ट से रिमूव दिस वन, राइट, आई विल एक्चुअली अप्लाई दैट वन, वो उसके आसपास ब्लेंड कर देगा, वहाँ से उठा के रिप्लेस कर देता है। एंड दिस रेड आई टूल इज़ बेसिकली जब कोई फ्रेश आप फ्लैश में कोई इमेज खींचते हैं, राइट, फ्लैश में अगर कोई इमेज खींचते हैं तो आंखें जो हैं वो चमक जाती है, तो आपको बस उसमें सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करना होता है आंखों में, एंड इट विल एक्चुअली रिमूव द रेड फ्रॉम दैट, ठीक। that I could show you with another image where you can see that this image is there. Okay, it doesn't opens up, so we have to right click, open with paint. Let's just see, there's flash के कारण lights हैं, to go to file, save as png. In the same one we'll say baby flash, and I'm just gonna click and drag it over here, ठीक। अब इसमें केवल ये वाला जो टूल है इसको सेलेक्ट करके यू जस्ट हैव टू क्लिक एंड ड्रैग ओवर, वो आइस को रिमूव कर देता है वहाँ से, so that is what these tools do. These are the healing brushes tool and majorly used to create use for the skin retouching. so ये skin retouch का पोर्शन है, alright। so अभी यहाँ तक करते हैं, then I will show you how to add the color tones and how to add the shadow tones over here, ठीक है। अभी तो ये काफ़ी ग्लोई सा नज़र आ रहा है, बट इसको नेचुरल शेड्स देने पड़ेंगे, तब वो एक एक्चुअल आर्ट वर्क तैयार होगा, ओके। so this will be our natural one and this will be our edited one, okay। so let me just save this one in our class, this is called photo retouching, skin retouch, photo retouch,